मार्क्समैन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर एक वीडियो हमने बना रखा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लूसेंट एंड दैट इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं सो फॉर बेटर क्लियर ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी हम उस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन is related to the correct sequence of the layers of atmosphere from the surface of earth upward is। so हमने देखा था कि atmosphere कुछ नहीं, it is an envelope of air above the earth surface which has height of around 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर को हमने different layers में divide कर दिया और divide करने पे हमने देखा कि the first layer was troposphere followed by strato then meso ino and this is thermo and ino was the same and then exosphere. So this is the correct answer related to this. Next question is most weather activity which in which atmospheric layer most weather activity हो जाए that is in the troposphere। tropo का मतलब ही होता है changes literal meaning change होता है and this is the most you can say that the part of atmosphere where all the climate or weather changes took place। clouds होते हैं, rain होते हैं, precipitation होते हैं, सब troposphere में ही होते हैं। इसके ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जो कंपैरेटिवली काम होता है दैट इज द रीज़न कि जो फ्लाइट्स होते हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लाई करना चाहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है जहाँ पे 8 किलोमीटर ध्रुव के ऊपर ओवर पोल्स एंड 18 किलोमीटर ओवर इक्वेटर। Next question is that the atmosphere is a mixture of several gases, correct? Near the earth surface it contains, हमने देखा कि more than 80% of the density of the atmosphere is within the 32 kilometer of the height। 32 किलोमीटर की this is the part of the tropo and stratosphere, इसी में होता है। और जो most dense जो होंगे उसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन is the near the earth surface, जहाँ पे नाइट्रोजन is around 78% while oxygen is 21%, and then we have argon, carbon dioxide, so on, these type of gases। which gas has the maximum percentage in the atmosphere? मैक्सिमम की बात कर रहा है तो इट इज़ द नाइट्रोजन जो 78% होता है, ऑक्सीजन अराउंड 21%, कार्बन इज अराउंड 0.03%, हाइड्रोजन इज 0.005%। The stratosphere is said to be ideal for flying jet aircrafts। This is because हमने अभी बात किया था कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप स्ट्रेटोस्फेयर को पाओगे and this layer is just characterized by the absence of clouds and other weather phenomena। That is the reason कि flights और jet aircraft यहाँ पे fly करना चाहते हैं to avoid any turbulence during the flight। The ozone layer lies in the, हमने ये देखा था कि there is a ozone layer which has protecting us from the ultraviolet rays of the earth और this layer is located in the stratosphere। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ओजोन लेयर की जो हाइट होती है दैट इज अराउंड 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। 15 to 35 किलोमीटर from earth surface। which of the following protects, question number 7, which of the following protects life on earth from the radiation of the sun? तो अर्थ के रेडिएशन से हमें बचाने वाला that is ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर, part of stratosphere। function of ozone layer in stratosphere is, क्या है उसका फंक्शन? to prevent ultraviolet radiation effect on ground। ozone layer refers to atmospheric condition of Antarctica, नहीं। modern invention done on the planet Saturn, नहीं। it is basically the layer of atmosphere of 15 से 20 kilometer above the surface of the earth, the layer about 10 to 20 kilometer below the surface of earth, ये तो that is crust की बात कर रहा है, ये crust plus mantle, ये पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हम उसको पढ़ेंगे जब हम लिथोस्फेयर को पढ़ेंगे। The height of the ozone layer above the surface is 15 to
किलोमीटर। और कहाँ पे होता है ये? दिस इज ऑन द स्ट्रेटोस्फेयर। Which one of the following layer of the atmosphere is responsible deflection of radio waves? रेडियो वेव्स के डिफ्लेक्शन के लिए कौन सा स्फीयर जो एटमॉस्फेयर का लेवल है, दैट इज आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम ऑल्सो आयनोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे गैसेस चेंजेस, गैस मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू द मॉलिक्यूल्स आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, and this negative that area is called the ionosphere, and this is important for the purpose of deflection of radio waves which make the communication possible. Which layer of the atmosphere is related to responsible for aurora borealis? ये क्या है? aurora borealis is the streak of light, और ये दिखता है हमें, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखता है हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न पोल पे, नॉर्दर्न पोल पे और ये साउदर्न पोल पे, एंड दैट इट इज द आयनोस्फीयर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिबिलिटी ऑफ दिस ऑरोरा बोरेलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली इनक्रेडिबल लाइट होता है, बहुत खूबसूरत लाइट होता है, which is caused by the collision between the electrically charged particle released from the sun when it entered into the Earth's atmosphere. While wireless communication is reflected to the Earth's surface, wireless communication Earth surface में reflect होते हैं किसके द्वारा? तो it was the ionosphere. Which layer of atmosphere is used for telecommunication? It is ionosphere. It is the ionosphere. In which atmospheric layer are communication satellite located? Communication satellite are mostly located in the above Kármán line और around exosphere. exosphere में होता है around Kármán line, जहाँ से स्पेस की शुरुआत होती है, और वहाँ पे आप देखोगे exosphere में ये उपयुक्त होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। जियो स्टेशनरी एक सैटेलाइट होता है, देख अच्छा है जियो स्टेशनरी, एंड 36,000 किलोमीटर की हाइट एबव द अर्थ ये होता है, उसकी हाइट पे होता है। द फोर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, और दैट इज आइनो। 4 3 2 1 17 को नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से डिस्टेंस की बात करता है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, दैट इज आइनो, एंड देन एक्सोस्फीयर। सो इसी की बात कर रहा है, तो आप इसमें देखोगे कि ट्रोपो इज द फर्स्ट वन, ट्रोपो, देन स्ट्रेटो, देन मेसो, एंड देन थर्मो। 2 3 4 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रोपोस्फेयर हम जानते हैं कि चेंजेस होते हैं, इसलिए वेदर फिनोमिना सारे यहीं पे होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर यस 15 से 35 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो हम बोलते हैं, क्वेश्चंस में लिखे होते हैं, इज द दैट लेयर ऑफ ओजोन विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। आयनोस्फेयर यस, इसमें जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं चेंज इनटू द आयंस, और ये हमें हेल्प करते हैं रेडियो वेव। एंड द मेसोस्फेयर ऑरोरा, so the correct answer is 1 2 3 4. Aurora is also due to the ionosphere when charged particle from the sun enter into the Earth's atmosphere. So in this way you have completed the 18 questions from the atmosphere. Next topic we have is insolation. इसमें पूछा जा रहा है कि which one of the following reflects the more sunlight as compared to the three? इन 3 में सबसे ज़्यादा सनलाइट को कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो हम जानते हैं कि इट इज़ द लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो। 95% 90 to 95% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? क्या है? दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज हाईली वेरिएबल इन द लोअर एटमोस्फेयर। नहीं, इतना तो नहीं है, दैट इज अराउंड 4%। हाईली तो नहीं बोल सकते हैं। द जोन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इज लोकेटेड along the equator. So no, this is not possible because the आप ये देखोगे कि it is the insolation which is the important factor in deciding the temperature of any latitudes. ठीक है। नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो होता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड,
20 degree north latitude is the place which receive the most of the insolation, and that is the region where temperature is the maximum. इक्वेटर पे क्यों नहीं होता है? बिकॉज इक्वेटर पे क्लाउड्स आ जाते हैं, कन्वेक्शनल क्लाउड्स. द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? अर्थ इज रिकॉर्डेड एट हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज recorded at 20 degree north latitude due to highest insolation incoming solar radiation. Clear sky nights are cooler than cold cloud sky nights due to क्यों? तो it is due to the radiation. आपके ये जो क्लाउड्स होते हैं ये रेडिएट बैक कर देते हैं लॉन्ग वेव्स को, और इसके कारण आपको उस दिन ज़्यादा गर्मी लगती है इन कंपेरिजन टू क्लियर स्काई. द एटमॉस्फेयर रिसीव मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हमने बताया था कि जो ऊपर से इंसुलेशन आते हैं दैट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स जो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर पाते हैं. एटमॉस्फेयर गर्म होता है जब यहाँ पे अवेलेबल जो गैसेस हैं ये रेडिएट बैक करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ये लॉन्ग वेव्स के रूप में होते हैं. द कन्वर्सन फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेक्स प्लेस एट द अर्थ सरफेस. सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. इसीलिए आप देखोगे कि नीचे वाली लेयर ज़्यादा गर्म है और धीरे धीरे ऊपर जो है कम गर्म होता है. ये एक रीजन है. दूसरा रीजन जो है दैट इज रिलेटेड टू द प्रेशर डिफरेंसेस. ऊपर प्रेशर कम होता है इसलिए टेम्परेचर भी कम होता है. So the correct answer is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. वास्तविकता में the temperature decreases with the increase in height from the earth surface because the atmosphere can be heated upward only from the earth surface. Yes, it is correct. There is more moisture in upper atmosphere. नहीं, lower level में atmosphere होता है that is maximum up to 4%. एंड वाटर वेपर की बात कर रहा है. द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर. हाँ ठीक है, दैट इज द करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन इन अटलांटिक ओशन. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 2. इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ. इसका रीज़न इज दैट यू कैन से दैट जिस ओशन का साइज जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ द ओशन इज इनडायरेक्टली proportional to variation in the annual temperature. इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइज ज़्यादा है तो वेरिएशन कम होंगे. ठीक है. सो मोर टेम्परेचर वेरिएशन पाया जाता है अटलांटिक ओशन में, क्योंकि अटलांटिक ओशन का साइज इज कंपेयर टू पैसिफिक ओशन इज लेस. ठीक है. दैट ये जो है पॉइंट 2 दैट इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन साउदर्न हेमिस्फीयर. दैट इज ड्यू टू द आप देखोगे रिलीफ फीचर्स. साउदर्न हेमिस्फीयर में देर आर लेस आइलैंड और लैंड. दैट इज द रीजन. So this way you have completed atmosphere and cyclone, atmosphere and insolation.